चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर सांप और शीशा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना पसंद है? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? आप उस समय क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी एक कुत्ता या बिल्ली या चिड़िया को शीशे में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि उसने देखा? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब ये मजेदार कहानी एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे के बारे में पढ़िए। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग को जकड़ा है? A fully blooded cobra. All of us fell silent. हम सभी शांत हो गए। The question came from the homeopath. यह सवाल होम्योपैथ से आया। The topic came up when we were discussing snakes. यह विषय आया जब हम सांपों के ऊपर बातचीत कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे जैसे-जैसे डॉक्टर अपनी कहानी आगे बढ़ा रहा था। It was a hot summer night about 10 o'clock. यह एक गर्म गर्मियों की रात थी, 10 बजे के आसपास। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खा लिया था और मैं कमरे में आ गया था। I heard a noise from above as I opened the door. मैंने एक आवाज ऊपर से सुनी जैसे ही मैंने कमरा खोला। The sound was a familiar one. यह आवाज जानी पहचानी थी। One could say that the rats and I share the room. ऐसा कह सकते थे कि चूहे और मैं उस रूम में साथ में रहते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपने बॉक्स में से माचिस निकाली और टेबल पे रखा केरोसिन का लैंप जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room. घर में बिजली नहीं थी। यह एक छोटा सा किराए पर लिया हुआ कमरा है। I had just set up medical practice and my earnings were meager. मैंने अभी मेडिकल अभ्यास करना चालू किया था और मेरे पास कम पैसे थे। I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे पास सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। Along with some shirt and dhotis, I also possessed very solitary black coat which I was then wearing. कपड़े और धोती के साथ मेरे पास एक काला कोट था जो मैं उस समय पहना हुआ था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना काला कोट, सफेद शर्ट और थोड़ी सफेद बनियान उतारी और टांग दी। I opened the 2 windows in the room. मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोली। It was an outer room with one wall facing the open yard. यह एक बाहरी कमरा था जिसमें एक दीवार खुले हुए यार्ड की तरफ थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. वहाँ
कोई सीलिंग नहीं थी। There was a regular traffic of rats to and from the beam. वहाँ पर चूहों का बीम से आना-जाना लगा रहता था। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार की तरफ खींचा। I lay down, but I could not sleep. मैं लेट गया था, पर मैं सो नहीं पा रहा था। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मैं उठा और थोड़ी हवा खाने के लिए बरामदे में गया, लेकिन वायु देवता छुट्टी पर लग रहे थे। I went back into the room and sat down on the chair. मैं अपने कमरे में गया और अपनी कुर्सी पर बैठा। I opened the box beneath the table and took out a book. मैंने टेबल के नीचे से एक डब्बा उठाया और उसमें से एक किताब निकाली। The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने उस किताब को एक टेबल पे रखा जिस पे एक लैंप था और एक बड़ा शीशा था जिसके बगल से एक कंघा भी रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. जब भी शीशा पास में होता है तो उसमें देखने का मन करता है, तो मैंने भी खुद को उस शीशे में देखा। उस समय मैं सुंदरता का एक उपासक हुआ करता था। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर था। मैंने कंघा उठाया और अपने बालों में चलाया जिससे बालों की मांग सीधी हो जाए। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। तभी मुझे ऊपर से फिर वही आवाज सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor, and a doctor on top of it. Again came that noise from above. मैंने अपनी शक्ल शीशे में ध्यान से देखी और मैंने फैसला किया कि अब से मैं डेली शेव करूंगा और एक छोटी सी मूछ भी रखूंगा जिससे मैं अच्छा दिखूं। आखिरकार मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर था। मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। यह बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। मैंने एक और फैसला किया। मैं इस प्यारी सी मुस्कान को हमेशा अपनी शक्ल पर रखूंगा जिससे मैं अच्छा दिखूं। आखिरकार मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर भी था। फिर से ऊपर से वही आवाज आई। आई गॉट अप, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason.
If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. मैं उठा और मैंने कमरे के कुछ चक्कर लगाए। तभी मेरे दिमाग में शादी करने का विचार आया। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। उसे मोटा होना चाहिए, एक कारण से कि अगर मैं कुछ गलती करके भागूं तो वह मुझे पकड़ ना सके। इन्हीं विचारों के साथ मैं वापस अपनी सीट पे बैठ गया। इस बार ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एकदम से कुछ नीचे गिरा, ऐसे जैसे कि रबर ट्यूब गिर गया हो, जिसकी कोई चिंता करने की बात नहीं थी। फिर भी मैंने पीछे मुड़ा और ध्यान से देखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा, वैसे ही एक मोटा सा सांप लहराते हुए मेरे कंधे पर आ गया। सांप का आना और मेरा मुड़ना एक साथ हुआ। I didn't jump. I didn't tremble. I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered around my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं, मैं चिल्लाया नहीं। यह सब करने के लिए समय ही नहीं था। वह सांप ने सरकते हुए मेरे कंधे से मेरे बाएं हाथ को जकड़ लिया। सांप ने अपने फन फैला लिए थे और उसका चेहरा मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पे था। मैं वहां अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था, जैसे कोई पत्थर रखा हुआ हो, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। कमरे में अंधेरा था और उस लैंप की रोशनी में मैं पत्थर की मूर्ति जैसा बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मुझे उस समय यह दुनिया बनाने वाले का एहसास हुआ। वहां भगवान था। थोड़ी देर बाद मेरे को अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ। ऐसा दर्द जैसे कि कोई सुलगती हुई आग से निकली हुई रॉड मेरे हाथ को बड़ी जोर से दबा रही हो।
मेरे हाथ की सारी मजबूती जा रही थी। मैं क्या कर सकता था? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but was certain that the snake was looking into mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अगर मैं हल्का सा भी हिलता हूँ तो सांप मुझे काट लेगा। मौत मुझसे 4 इंच दूरी पे खड़ी है। मान लो कि वह सांप काट लेता है तो उसकी क्या दवाई होगी? जो भी हो, मेरे पास कमरे में कोई दवाई नहीं थी। मैं एक गरीब और बेवकूफ डॉक्टर था। यह सोचते हुए मैं अपने डर से बाहर आया और हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान को वह अच्छा लगा। सांप ने अपना मुंह शीशे की तरफ मोड़ लिया और खुद का प्रतिबिंब देखा। मैं यह दावा नहीं करूंगा कि यह पहला ऐसा सांप था जिसने शीशे में देखा हो, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि वह शीशे में ही देख रहा था। क्या वह खुद की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था या फिर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जरूरी डिसीजन ले रहा था? I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? मुझे पक्के से कुछ नहीं पता था वह सांप मेल था या फीमेल। मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो सांप मेरे हाथों से फिसलता हुआ धीरे धीरे मेरी गोदी में आया। वहाँ से वह टेबल की तरफ चला और शीशे में खुद को देखा। इस समय तक मैं पत्थर का नहीं बना हुआ था। अब मैं खून और मांस का बना हुआ था। अपनी सांस रोकते हुए मैं उस कुर्सी से उठा और दरवाजे से होता हुआ वेरांडा पहुंचा। वहां से मैं यार्ड की तरफ दौड़ा और अपनी जान के लिए दौड़ लगाई। फिर हम सब ने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर, क्या आपकी पत्नी सही में मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन with a gift of a sprinter. Someone else asked,
Doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. नहीं, डॉक्टर ने कहा, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। मेरी साथी एक पतली और तेज भागने वाली इंसान थी। किसी और ने पूछा, डॉक्टर, जब आप भागे क्या सांप ने आपका पीछा किया? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं भागा और मैं भागता रहा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। वहां मैंने अपने ऊपर थोड़ा तेल डाला और फिर एक बाथ लिया और फिर मैंने साफ कपड़े पहने। अगली सुबह 8:30 बजे के आसपास मैं अपने एक दोस्त को और दो और दोस्तों को लेके अपने कमरे में से सामान लेने गया, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कम सामान है। कुछ चोरों ने मेरा ज़्यादातर सामान पहले ही हटा लिया है। वो कमरा साफ हो चुका है, लेकिन उसमें मेरी बेइज्जती करने के लिए चोर बस एक चीज़ छोड़कर गए हैं। What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. वह क्या चीज़ थी डॉक्टर? मैंने पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरी वेस्ट, वह गंदी वाली। उस चोर को साफ सफाई का बहुत ध्यान था। वह इस वेस्ट को भी ले जाकर उसको धो के इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं। डॉक्टर, क्या आपने वह सांप फिर से देखा? डॉक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने उस सांप को फिर कभी नहीं देखा। वह एक ऐसा सांप था जो खुद की सुंदरता से प्रभावित था। क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? वॉट डिड ही थिंक इट वॉज? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? वह एक जानी पहचानी आवाज़ थी। डॉक्टर किस आवाज़ के बारे में बता रहे हैं? उन्हें क्या लगा कि वह आवाज़ किस चीज़ की थी? उन्होंने कितनी बार इस आवाज़ को सुना? यह आवाज़ कब और क्यों रुकी? आंसर, द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ रैट्स। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। ही हर्ड दिस साउंड 4 times. The phase are, again I heard the sound from the above. Again came that noise from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen. The sound stopped after the appearance of the snake. डॉक्टर ने चूहों की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। डॉक्टर ने यह आवाज़ 4 बार सुनी। वो फेजेस थे, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन। यह आवाज़ तब रुकी जब सांप आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror?
डॉक्टर ने क्या बहुत ज़रूरी डिसीजन लिए शीशे में देखते हुए? आंसर: The doctor took the following two important and earth-shaking decisions. A. He would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. B. He would always keep that attractive smile on his face. उत्तर: डॉक्टर ने यह दो ज़रूरी डिसीजन लिए। पहला, कि वह रोज़ दाढ़ी बनाएगा और एक पतली सी दाढ़ी रखेगा जिससे वह और अच्छा दिखे। दूसरा, वह अपने शक्ल पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट रखेगा। क्वेश्चन 3. I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when first he first smiles and second he smiles again? In which way do you think his thoughts change in between and why? Poem: A Legend of the Northern Land by Phoebe Cary. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeers to the sledge when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe that's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, he came to the door of a cottage in traveling round the earth when a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made him a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cake that seemed too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. पहले स्टेंजा में पोएट नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब करते हैं
वे बताते हैं कि नॉर्थ पोल से दूर जाके एक जगह है नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में सर्दियों में दिन रात से छोटे होते हैं। नॉर्थलैंड के लोग ज़्यादा देर नहीं सो पाते क्योंकि जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं और ठंडी होती हैं। नॉर्थलैंड एक ठंडी जगह है। पोएट बताते हैं कि जब भी वहाँ बर्फ़ गिरती है, नॉर्थलैंड के लोग रेनडियर को स्लेज से बांध लेते हैं। रेनडियर एक स्पेशल टाइप का डियर होता है जो पोलर रीजन्स में पाया जाता है। पोएट आगे बताते हैं कि जो बच्चे हैं वे भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं जब उन्हें वे मज़ेदार कपड़े पहना देते हैं जो सर्दियों में पहनने होते हैं। नॉर्थलैंड के लोगों में एक कहानी बहुत फेमस है। पोएट बताते हैं कि वह मानते नहीं हैं कि यह कहानी सच है, लेकिन फिर भी पाठक को शायद इससे कुछ सीखने को मिल जाए। अब पोएट कहानी चालू करते हैं। एक सेंट पीटर नाम का सेंट दुनिया में रहा करता था और आसपास घूमा करता था और लोगों को रिलीजियस स्पीच दिया करता था, जैसे कि सभी सेंट देते हैं। उसके बाद एक घटना हुई। जब वह दुनिया के आसपास घूम रहे थे, तब सेंट पीटर एक पुराने कॉटेज में आए। इस कॉटेज में उनने एक छोटी सी महिला को देखा जो केक बना रही थी। वह उन केक को आग के पास बना रही थी। सेंट पीटर ने कुछ दिनों से व्रत रखा हुआ था, तो वह कमज़ोर महसूस कर रहे थे। वे बस अपने होश खोने ही वाले थे भूख के कारण। तब उन्होंने वह व्रत तोड़ने का निश्चय किया और कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तो वे उस महिला से जाकर एक केक का टुकड़ा मांगते हैं। लेकिन वह महिला बहुत लालची होती है। वह यह सोचती है कि उसने सभी बड़े बड़े केक बनाए थे, तो वह उस सेंट को देने के लिए एक छोटा सा केक बना देती है। लेकिन जब वह वो नया केक बनाती है, उसको वो भी बहुत बड़ा लगता है, तो वह ना देने का फैसला करती है और उससे भी छोटा एक केक बनाती है। इस बार वह उससे भी छोटा आटा लेती है जो इसने पहले लिया होता है। लेकिन जब वह केक बनके तैयार होता है, तब उसे यही लगता है कि ये तो पिछले वाले जैसा ही है, और वह बड़ा समझ के उस केक को सेंट पीटर को नहीं देती है और फिर से एक बार और नया बनाना चालू कर देती है। ऐसे ही उस महिला को लगता है कि जब वह खुद के लिए केक बना रही होती है, तो उसे लगता है कि केक छोटे बन रहे हैं। लेकिन जब वह किसी और को देने के लिए केक बना रही है, तो उसे लगता है कि केक ज़्यादा बड़े बन रहे हैं। इसीलिए वह निश्चय करती है कि वह उस सेंट को केक नहीं देगी। यह सब देखने के बाद सेंट पीटर को गुस्सा आ जाती है। वह औरत बहुत लालची थी और एक केक का टुकड़ा भी उन सेंट को नहीं दे सकी। यह बिहेवियर सेंट को पसंद नहीं आया और वे इससे बहुत नाराज़ हुए। सेंट पीटर ने उस वुमन को कहा कि वह बहुत सेल्फिश है और उसे इंसानी लाइफ जीने का कोई हक नहीं है। उसे खाना खाने का कोई हक नहीं है, घर रखने का, ना ही आग के सामने बैठने का कोई हक है। वह इतनी लालची हो चुकी है कि वह ज़रूरतमंदों के साथ भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रही है। तो सेंट पीटर ने उसको यह श्राप दिया कि वह एक चिड़िया में बदल जाए एंड जिस तरीके से सारी चिड़िया अपने लिए घोंसला बना के रहती हैं, वैसे ही रहे। उसे खाने के लिए कम खाना मिलेगा, उसे दिन भर मेहनत करनी होगी और तभी उसको खाने के लिए कुछ भी मिल पाएगा और घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी मिल पाएगी। जैसे ही
सेंट पीटर ने उस वुमन को श्राप दिया। उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। वह सीधे चिमनी से होती हुई ऊपर गई और निकलते समय एक चिड़िया में बदल गई। वह चिड़िया एक वुडपेकर थी। वह वुमन एक लाल कलर की कैप पहनती थी। तो जब वह चिड़िया में बदली तो वह कैप वैसी की वैसी ही रही। कैप के अलावा सब कुछ जल गया। उसके कपड़े राख बन चुके थे। जो भी लोग उस रीजन में रहते हैं, इवन वो स्कूल बॉयज़ ने उस चिड़िया को देखा है। वह एक पेड़ पर दिन भर रहती है और लकड़ी और खाना ढूंढती रहती है। बूढ़े लोग यह कहानी अपने से छोटे लोगों को सुनाते हैं, यह सिखाने के लिए कि अपने जीवन में कभी भी लालची नहीं